Hello everyone, I'm Fahd Ali and you are watching my YouTube channel Study with Fahd. In last video we had discussed what is language and different definitions of language. Today we are going to start another wonderful topic, that is the origins of language. So what is origin of language? Origin of language हम किस चीज को बोलते हैं? Origin of language refers to the process and historical development through which human beings first evolved the ability to communicate using structured symbolic systems such as a spoken or sign language that allow the expression and sharing of complex ideas, thoughts and emotions. देख लैंग्वेज जो है ना वो एक एबिलिटी है, एबिलिटी टू कम्युनिकेट सिंपली अगर हम कहें तो वो कब स्टार्ट हुई, उसकी इनिशियल पॉइंट क्या है, कैसे ह्यूमंस ने जो है ना वो सिंबॉलिक सिस्टम, साइन लैंग्वेज या स्पोकन लैंग्वेज यूज की, तो उसकी जो ओरिजिन है ना वो स्टार्टिंग वाली पॉइंट कहाँ से लैंग्वेज शुरू हुई, उस चीज को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज. The origin of language is a complex and still largely unresolved topic that involves multiple disciplines including linguistics, anthropology, psychology, neuroscience and evolutionary biology. तो ये एक डिबेट है, अगर हम इसको सिंपल वे में कहें कि लैंग्वेज ओरिजिन एक डिबेट है, ये एक मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई, बिकॉज हर ब्रांच ऑफ नॉलेज में लिंग्विस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इन सारों में जो है ना वो अलग अलग थियरीज गिवन है. देयर आर सर्टेन कंसेप्ट्स, थियरीज एंड सोर्सेज जो अभी तक जो है ना वो 100% प्रूव नहीं कर सके कि लैंग्वेज कहाँ से शुरू हुई, लैंग्वेज की ओरिजिन क्या है. बट वो जो सोर्सेज हैं, वो जो थियरीज हैं, वो हेल्पफुल तो हैं, नो डाउट. 100% श्योर नहीं है कोई भी एक थियरी. लैंग्वेज ओरिजिन remains one of the most challenging and debated questions in science because there's no direct fossil or archaeological evidence showing exactly when or how language began. इसका ना फॉसिल ना जो है ना वो आर्कियोलॉजिकल बेसिस पर कोई एविडेंस मिलता है कि हाँ भाई यहाँ से लैंग्वेज शुरू हुई थी, ये देखो ये एविडेंस है कि लैंग्वेज यहाँ से शुरू हुई, कोई एविडेंस नहीं. लैंग्वेज लीव्स नो फिजिकल ट्रेसेस. डिफरेंट डिसिप्लिन्स, लिंग्विस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, न्यूरोसाइंस, आफ्टर वेरियस थियरीज बट नन हैज बीन डेफिनेटली प्रूवन. बहुत सारी थियरीज हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट अभी तक इसका जो है ना वो क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो नहीं मिला. क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं मिल पाया कि हाँ भाई यहाँ से लैंग्वेज शुरू हुई. It likely involved a complex mix of biological evolution, cultural development, cognitive changes over a long period. तो इसमें बहुत सारी थिंग्स जो है ना वो इन्वॉल्व हैं, जैसे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हो गया, कल्चरल डेवलपमेंट हो गया, या जो है ना वो कॉग्निटिव चेंजेस हो गए. Language origin remains one of the most challenging and debated questions in science because there is no direct fossil or archaeological evidence showing exactly when or how language began. Language leaves no physical traces. मतलब हमें fossils और जो archaeological basis पर हम कहें कि evidence नहीं मिलते कि भाई यहाँ से language start हुई. This is the initial point from where language started. Different disciplines, linguistics, anthropology, neuroscience offer various theories, but none has been definitely proven. जो मैंने आपसे बात करी कि 100% कोई भी theory जो है ना वो prove नहीं कर सकती कि language की origin actual में क्या है. It likely involved a complex mix of biological evolution, cultural development and cognitive changes over a long period. मतलब ये mixture है, कुछ cultural development आ गई उसमें, जो है ना biological evolutions आ गए. तो this we can call it origin of language. हम किस चीज को कहते हैं. फर्दर चार्ल्स डार्विन वो क्या कहते हैं origins of language. Before early humans could speak with actual words, they might have tried to attract and express love to each other using musical sounds and rhythms like singing or humming. He thinks it's quite possible that music came before spoken language in human डेवलपमेंट. डार्विन्स कहते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो
कम्युनिकेशन का सिस्टम। जाहिर सी बात है वो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर तो नहीं होगी स्टार्टिंग में। तो वो क्या करते थे जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, ह्यूमंस जो लव शेयर करते थे, वो जो आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, तो वो थ्रू लिमिटेड जो साउंड्स हम कहें ना, वो साउंड्स प्लेजेंट साउंड्स के जरिए वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, जिसमें रिदम और साउंड्स का मैंने आपको बताया। ठीक है, और उनको हम जो है ना वो इनआर्टिकुलेटेड साउंड्स भी कह सकते हैं। वो कंप्लीटली आर्टिकुलेटेड और वेल स्ट्रक्चर्ड साउंड्स नहीं होते थे। उसके बाद डिवाइन सोर्स, जो फर्स्ट सोर्स है ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो डिवाइन सोर्स के हिसाब से लैंग्वेज इज बिलीव्ड टू हैव कम फ्रॉम डिवाइन और गॉडली सोर्स। फॉर एग्जांपल इन बाइबल एडम नेम्ड ऑल द एनिमल्स, एंड इन हिंदू ट्रेडिशन द गॉडेस सरस्वती इज बिलीव्ड टू हैव गिवन लैंग्वेज टू ह्यूमंस। मतलब अगर हम बाइबल की बात करें, तो बाइबल में जो है ना वो एडम ने एनिमल्स जो जानवर है उनको नेमिंग जो है ना वो नेमिंग द एनिमल्स, उनको कॉल किया, उनको एक नेम देकर पुकारा, वहां से जो है ना वो लैंग्वेज स्टार्ट हुई। हिंदू ट्रेडिशन की अगर हम बात करें, तो हिंदुइज्म में जो गॉडेस है सरस्वती, उन्होंने जो है ना वो लैंग्वेज दी हुई है ह्यूमंस को अकॉर्डिंग टू दीज रिलीजियस sacred sources. Further, because of these beliefs, some people tried experiments to see if babies would naturally start speaking a given language, a God-given language, original language, if no one spoke to them as they grew up. These experiments had mixed results and didn't clearly prove the idea. उसके बाद जो है ना वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ओल्ड टाइम्स में बहुत सारे जो किंग्स और क्वींस होते थे और जो रूलर्स होते थे, उन्होंने जो है ना वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कि एक्चुअल में जो गॉड गिवन लैंग्वेज है वो कौन सी है। जैसे किंग सेमिटकस जो है वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया हुआ है अ लॉन्ग टाइम अगो, ओवर 2500 years ago. A Greek writer named Herodotus told a story about an Egyptian king, Semitcus, who wanted to find out what the first original human language was. उन्होंने जो है ना ये इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट करा कि लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज जो है ना वो बच्चा स्टार्टिंग में स्पीक करता है, कौन सी लैंग्वेज गॉडली जो गिवन लैंग्वेज है। तो व्हाट ही डिड, किंग जो है उसने क्या किया, ही डिड टू न्यू बॉर्न बेबीज एंड केप्ट देम अवे फ्रॉम ऑल पीपल एक्सेप्ट फॉर अ म्यूट शेफर्ड, समवन हु कुडंट टॉक एंड सम गोट्स। तो एनिमल्स के साथ उन बच्चों को रखा गया और एक शेफर्ड चरवाहा उनके साथ हुआ करता था और वो बोलता नहीं था। और उन बच्चों के आसपास, उन बच्चों के जो सराउंडिंग्स में भी कोई लैंग्वेज यूज नहीं हुआ करती थी, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पस, देखने के लिए कि वो बच्चे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। आफ्टर 2 years द बेबी सेड द वर्ड बिकॉज व्हिच समवन सेड मींस ब्रेड इन द फ्रिजियन लैंग्वेज स्पोकन इन व्हाट इज नाउ टर्की। तो उन्होंने एक वर्ड बोला बिकॉज, तो वहां पर जो है ना वो एक कंसेप्ट क्रिएट हो गया भाई, जो बिकोस है वो उसकी मीनिंग है ब्रेड फ्रिजन लैंग्वेज में। बिकॉज ऑफ दैट द किंग थॉट फ्रिजन मस्ट बी द फर्स्ट ह्यूमन एवर स्पोक। तो किंग ने जो है ना वो मान लिया कि ये जो है ना वो लैंग्वेज फ्रिजन जो लैंग्वेज है वो फर्स्ट ह्यूमन लैंग्वेज है। फर्दर किंग जेम्स फोर ऑफ स्कॉटलैंड एक्सपेरिमेंट, उन्होंने भी सेम चीज करी। किंग जेम्स फोर ऑफ स्कॉटलैंड अराउंड 1500, according to historical accounts, he isolated children to see which language they would naturally speak, accepting it to be Hebrew. This reflects the belief at the time of that Hebrew was the original God-given language of humanity, the language of the Garden of Eden. तो जो किंग जेम्स फोर हैं उन्होंने भी सेम चीज करी। तो उन्होंने ये माना कि जो है ना वो हेब्रू जो लैंग्वेज है वो गॉडली गिवन लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज जो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज है दैट ह्यूमंस यूज टू स्पीक। फर्दर अच्छा, मॉडर्न एविडेंस जो है, मॉडर्न थ्योरीज जो है कंट्राडिक्ट्स द डिवाइन सोर्स हाइपोथेसिस। तो वो अपोजिट है डिवाइन सोर्स के। कैसे? मॉडर्न फाइंडिंग्स फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, children who grow up in extreme isolation without exposure to language do not spontaneously speak any language including ancient or divine tongue। तो बच्चों को स्टार्टिंग में आप कोई लैंग्वेज दे ही नहीं रहे तो वो फिर लैंग्वेज कैसे बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट? बिकॉज क्योंकि लैंग्वेज इज समथिंग दैट विल लर्न
from a surrounding, and that is habit formation. Children need regular interactive exposure to language during critical period, roughly birth to age 5. मतलब मतलब पैदा होने से 5 साल तक जो बच्चे हैं ना उनको वो इंटरेक्टिव एक्सपोजर चाहिए रेगुलर इन ऑर्डर टू डेवलप लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है ना वो क्रिएट करने के लिए। विदाउट दिस इनपुट इनपुट आएगा ही नहीं तो बच्चा लैंग्वेज कैसे बोलेगा? बिकॉज लैंग्वेज इज समथिंग दैट वी लर्न फ्रॉम, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सोसाइटी से सीखते हैं। देयर एबिलिटी टू अक्वायर एंड यूज लैंग्वेज इज सिवियरली लिमिटेड और लॉस्ट। अगर ऐसा ना हुआ तो या तो वो लैंग्वेज बोलेंगे ही नहीं, अगर बोलेंगे तो फिर वो लैंग्वेज जो है ना वो ऐसी होगी, टूटी फूटी लैंग्वेज होगी। This strongly undermines the divine source hypothesis and supports the idea that language is a learned behavior through humans are biological predisposed to acquire it। अच्छा, ये जो मॉडर्न एविडेंसेस हैं ये डायरेक्टली जो है ना वो रिजेक्ट करते हैं डिवाइन सोर्स को, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि लैंग्वेज एक लर्नड बिहेवियरल जो है ना वो लर्निंग होती है। लैंग्वेज में बिहेवियर, लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट इज अ बिहेवियरल लर्निंग अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट्स। हम वो जो है ना वो सराउंडिंग मैटर्स अ लॉट, सराउंडिंग्स में जो लैंग्वेज यूज होगी हम वही लैंग्वेज जो है ना वो कॉपी करेंगे और डेफिनेटली वही लैंग्वेज स्पीक करेंगे। उसके बाद भाई जो है ना वो नेचुरल सोर्स आता है। व्हाट इज नेचुरल सोर्स? नेचुरल सोर्स के हवाले से अगर हम देखें ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज को तो डिफरेंट थियरीज आती हैं। जैसे फर्स्ट थियरी इज बाओवाव थियरी। बाओवाव थियरी के हवाले से द बेसिक आइडिया इज दैट द फर्स्ट ह्यूमंस वर्ड्स may have come from imitating natural sounds they heard around them। मतलब जो नेचुरल साउंड्स प्रोड्यूस हुए, जो बर्ड्स ने प्रोड्यूस करे, एनिमल्स ने प्रोड्यूस करे, उनको ह्यूमन ने क्या किया? कॉपी किया, इमिटेट किया, तो वहां से जो है ना वो लैंग्वेज बनी अकॉर्डिंग टू बाओवाव थियरी। फॉर एग्जाम्पल, कैसे इफ अ बर्ड मेड अ कॉका साउंड, अर्ली ह्यूमंस माइट हैव स्टार्टेड कॉलिंग द बर्ड बाय द साउंड। ठीक है, तो उन्होंने जो है ना वो उस बर्ड को उस हवाले से जैसा उसने साउंड प्रोड्यूस किया तो उनको जो है ना वो उन्होंने ऐसे ही बुलाना शुरू किया ह्यूमंस ने। उसके बाद another bird might go cuckoo so they used that sound for it too। This idea is called bow wow theory because some words like bow wow for dogs bark copy the real sounds animals make। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है ओनोमेटोपिया जो एंड में लिखा हुआ है कि these kinds of words are called onomatopoeia। मतलब कैसे? लाइक जो बी होती है वो बजिंग साउंड जो होता है ना वो हिज स्नेक जो साउंड जैसे प्रोड्यूस करता है, तो दीज साउंड्स लुक्स लाइक, जो वर्ड्स हैं वो भी साउंड को ही डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे बज, तो जैसा साउंड है वैसा ही जो है ना वो वर्ड है। तो इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? ओनोमोटोपिया। ठीक है, तो नेचुरल साउंड की फर्स्ट थियरी ये है। फर्दर दिस थियरी मेक्स सम सेंस बिकॉज वी स्टिल यूज साउंड बेस्ड वर्ड्स टुडे। हम अभी तक जो है ना साउंड बेस्ड जो है ना वो वर्ड्स यूज करते हैं। दिस थ्योरी हैव सम वेट, हम कह सकते हैं। इट्स इजी टू बिलीव दैट अर्ली पीपल कॉपीड साउंड्स टू क्रिएट वर्ड। ये हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो ह्यूमंस हैं उन्होंने कुछ साउंड्स जो है ना वो कॉपी किए, उसके बाद वर्ड्स बनाए। बट दिस कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल वर्ड्स। बट ये कंप्लीटली, ये जो बाओवा थ्योरी है ये कंप्लीट सोर्स नहीं है। कैसे? स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट वन लाइक लव थिंग, जैसे जो लव है या जो इमोशंस है उनको हम कैसे इस थ्योरी में पुट करें? डोंट हैव एनी साउंड टू कॉपी, उनके पास कोई साउंड भी नहीं है ऐसा जो कॉपी कर सके इन चीजों को, जैसे लव हो गया या जो एंगर हो गया। सो व्हाइल इट माइट एक्सप्लेन हाउ सम बेसिक वर्ड्स स्टार्टेड, इट्स probably नॉट द होल स्टोरी ऑफ हाउ लैंग्वेज began। तो हम कह सकते हैं दिस थियरी इज हेल्पफुल समहाउ बट नॉट कंप्लीटली। फर्दर, पुपू थ्योरी। दिस थियरी सेज, अच्छा ये भी नेचुरल सोर्स की थ्योरी है। दिस थियरी सेज दैट द फर्स्ट ह्यूमन स्पीच केम फ्रॉम इंस्टिंक्टिव इमोशनल क्राइज लाइक सेइंग ouch when in pain, yuck in disgust और wow in surprise। जैसे जो एक्सक्लेमेटरी जो जैसे होते हैं ना, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक आउच, जब आपको पेन होता है तो आप ऐसे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जैसे आप सरप्राइज में होते हैं तो वाओ। तो ये क्या है? ये जो इमोशंस से रिलेटेड जो वर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है ना वो इमोशनल क्राइज का आउटपुट है। बट
These are natural automatic sounds people make when they feel strong emotions. तो ये निकल जाते हैं अचानक से, जो है ना, वो जब इमोशंस स्ट्रोंग हो जाते हैं तो सडनली हमें से साउंड्स जो है ना वो निकल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज, पुपू थ्योरी के हिसाब से लैंग्वेज ओरिजिन यहाँ से हुई थी। इट्स नेम्ड आफ्टर साउंड्स लाइक पुपू दैट पीपल माइट मेक टू शो डिसलाइक और रिजेक्शन, सिमिलर टू सेइंग ई और ऊ। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस थियरी? दिस थियरी ये कहाँ पर जो है ना वो रिजेक्ट होती है। दीज इमोशनल साउंड्स आर नॉट स्ट्रक्चर्ड लाइक रियल लैंग्वेज। रियल लैंग्वेज जो है ना वो सिस्टम है, वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। और दीज साउंड्स जो पूपू थ्योरी के हिसाब से इमोशनल साउंड्स हैं, ये वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज तो नहीं है। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड नॉट कंबाइंड इनटू लॉन्गर मीनिंगफुल सेंटेंस, और ये सेंटेंस भी नहीं बनाते, बस ऐसे ही अलग अलग जो है ना वो वर्ड्स हैं। ऑफन they are spoken or an intake of breath while normal speech happens when breathing out। और ये साउंड्स जो होते हैं ना वो ब्रीथिंग इन, जो हम अंदर सांस लेते हैं तो प्रोड्यूस होते हैं, while the language that humans are producing वो क्या होती है, वो ब्रीथ आउट करने से पैदा होती है। These kinds of sounds are found in many animals too, but animals don't have language like humans do। ये साउंड्स तो बहुत सारे एनिमल्स के पास भी है और उनके पास तो लैंग्वेज नहीं है। अगर ये थ्योरी सही है तो फिर जाहिर सी बात है उनके पास भी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो दिस इज द थ्योरी, सेकंड थ्योरी। देन वी हैव अनदर सोर्स दैट इज सोशल इंटरेक्शन सोर्स, और उसमें जो थ्योरी है उसको हम बोलते हैं यो ही हो थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द यो ही हो थ्योरी suggests that humans' language may have started from the sounds people made while working together, like grunts, groans, or chants. For example, while lifting something heavy, early humans might have used these sounds to stay in sync or encourage each other। तो जो है ना वो ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो साउंड्स प्रोड्यूस किए थे ह्यूमंस ने, कब? जब वो ग्रुप की सूरत में या जो इंटरेक्ट करके, सोशली इंटरेक्ट करके वो जो वेट लिफ्ट करते थे या जो स्टोन्स कैरी करते थे, तो तब जो साउंड्स प्रोड्यूस होते थे ना वहां से लैंग्वेज स्टार्ट हुई है। However, while this theory explains how sounds might have been used, it doesn't explain where those sounds originally come from, like why humans started making them in the first place। That's the part is still missing। So this theory is related with social interaction source। उसके बाद there's very much important source that is physical adaptation source। फिजिकल वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि दिस इज रिलेटेड विथ ह्यूमन ऑर्गन्स। तो instead of focusing on the kinds of sounds humans make, we can look at how physical bodies are built to support speech। मतलब हमारी बॉडी किस तरह से बनी हुई है, हमारे ऑर्गन्स किस तरह से बने हुए हैं, और वो कैसे स्पीच को, लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, और क्या इन ऑर्गन्स की वजह से ह्यूमंस लैंग्वेज जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमंस वो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। और अदर जो एनिमल्स हैं, अदर जो हम क्रिएचर्स हैं, उनके ऑर्गन्स में और हमारे ह्यूमंस के ऑर्गन्स में एक डिफरेंस है। और क्या ये डिफरेंस जो है ना वो रीजन है बिहाइंड द लैंग्वेज, प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, जो ह्यूमंस लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए। फॉर एग्जांपल, a long time ago our ancestors started walking on two feet bipedal, which changed how they used their hands and arms। this upright posture and change in body structure may have helped in development of speech। स्पीच को डेवलप करने के पीछे जो वजह ये भी हो सकती है, जो ह्यूमंस की बॉडी में जो चेंजेस आए हैं ओल्ड टाइम्स से लेकर अभी तक, जो इवोल्यूशन हुई है ना बॉडी की, ह्यूमंस की, तो क्या ये रीजन है लैंग्वेज को जो है ना वो स्पीच प्रोडक्शन के पीछे? ये लैंग्वेज, ये रीजन तो नहीं हो सकता। फिजिकल एडेप्टेशन साउंड साइंटिस्ट लुक एट हाउ बॉडी चेंज ओवर टाइम to understand when speech might have started। But it wasn't until about 35,000 years ago that people started to have body parts more likely modern humans which help with स्पीच। अच्छा, जैसे जैसे ह्यूमंस की इवोल्यूशन हुई, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, तो जो उनके जो पार्ट्स थे लाइक वोकल ट्रैक है या जो भी स्पीच पार्ट्स हैं या जो ह्यूमंस के बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो चेंज हुए टाइम के साथ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो चेंजिंग आई ह्यूमंस की, जो बॉडी में चेंजिंग्स आई है ना, वो लैंग्वेज के, स्पीच के ओरिजिन या लैंग्वेज के ओरिजिन या स्पीच के प्रोडक्शन के पीछे वजह हो सकती है अकॉर्डिंग टू फिजिकल एडेप्टेशन सोर्स।
For example, the skull of gorilla looks very different from that of Neanderthal, who lived about 60,000 years ago. Neanderthal had parts of their throat that might have allowed them to make some sounds like consonants. Some body parts that help with talking are similar or shaped differently in humans compared to other primates. These changes don't mean the creature could definitely speak, but they show it was likely able to make speech sounds. अच्छा, जो अदर जो क्रिएचर्स हैं जो ह्यूमंस से हम कंपेयर कर सकते हैं लिटिल सिमिलर जो हैं उनके बॉडी में जो पार्ट्स हैं वो ह्यूमंस के बॉडी में हम अगर देखें तो देयर इज डिफरेंट। अगर वो डिफरेंस है तो क्या ये वजह है, हम कह सकते हैं कि ये भी वजह हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं कि डिफरेंस है कि भाई वो लैंग्वेज बोलेंगे, नहीं, मतलब वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। फर्दर, ह्यूमंस टीथ, अगर हम टीथ की बात करें, टीथ, तो ह्यूमन टीथ स्टैंड स्ट्रेट एंड आर अबाउट द सेम हाइट व्हिच इज गुड फॉर च्यूइंग फूड नॉट फॉर टीयरिंग इट लाइक सम एनिमल्स डू। तो ये जो है ना वो ह्यूमन टीथ और एनिमल टीथ में फर्क आता है। Our lips have many muscles that helps us make sounds like p, b। जो bilabial sounds हैं वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं because of our lips, और जो हमारे लिप्स हैं वो मैस्कुलर हैं जिसकी जिसकी वजह से जो है ना वो हम ये साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। Our mouths are smaller than primates. Mouths can open and close, and our tongues are thicker and stronger, helping us make lots of different sounds. Also, humans can block the nose to build up air pressure in mouth, which helps speech. All these little differences let humans make many different sounds quickly and clearly. तो ये जो छोटे छोटे जो है ना वो differences हैं हमारी और अदर primates में, तो ये जो है ना वो क्या करते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं साउंड्स प्रोड्यूस करने में। इन ह्यूमंस द larynx also called the voice box is located lower in the throat than it is in monkeys। तो ये जो लिरिंग्स होते हैं वो वॉइस बॉक्स जो होते हैं ह्यूमंस में वो नीचे रखे हुए हैं, और जो अदर जो एनिमल्स हैं मंकीज जैसे हो गए तो उन मंकीज में जो है ना वो ऊपर है। तो ये भी जो है ना कि डिफरेंस है जिसकी वजह से ह्यूमंस लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं। दिस चेंज हैपेंड एज ह्यूमंस बिगेन टू स्टैंड एंड वॉक अपराइट। ये चेंज तब आई जब ह्यूमंस ऊपर उठकर चलना शुरू किया ह्यूमंस ने। Because of this lower position, humans have longer space above the vocal cords called the pharynx. This extra space helps us make clearer and more varied sounds, which is important for speech। तो ये जो है ना वो एक स्पेस होती है इन वोकल कॉर्ड्स के बीच में, वोकल कॉर्ड के अबव जिसको हम फ्रेंक्स कहते हैं। तो ये जो स्पेस होती है ना इस स्पेस की वजह से भी जो है ना हम डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो है ना वो फिजिकल एडेप्टेशन सोर्स है। उसके बाद another source that is the tool making source। The human brain is not only big for our body size, but it is also has two sides called hemispheres that do different things। the left side of the brain helps us to do things like talk and use tools like writing or using a spoon. These two abilities, speaking and using tools, are controlled by parts of the brain that are right next to each other. Because of this, scientists think that learning to use tool and learning to speak might have develop together over time as the brain evolves। So जो human brain है वो हेमिस्फीयर जिसको हम कहते हैं, तो वो जो पार्ट्स हैं ब्रेन के, डिवाइड इफ वी डिवाइड ब्रेन इन टू पार्ट्स, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। तो ये जो टूल मेकिंग जो पार्ट है जिस जगह पर है वहां पर जो है ना हम कह सकते हैं कि उसके राइट जो है ना नेक्स्ट उस पार्ट के एक ऐसा भी पार्ट है जो ह्यूमन लैंग्वेज प्रोड्यूस करता है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ से ये चीज टूल मेकिंग वाला जो है ना वो एबिलिटी प्रोड्यूस होगी वहां से लैंग्वेज प्रोड्यूस हो सकती है। देन वी हैव अनदर हाइपोथेसिस दैट इज नेमिंग हाइपोथेसिस। उसके हिसाब से some scientists think language began when early humans started using simple sounds to point out things like saying or sound for tree or food। This was a good start, but just naming things isn't enough to real language। वो कहते थे कि जो humans ने जो naming जो है ना naming things start करी वहां से language start हुई, but naming things is not big deal। naming things isn't enough, वो काफी नहीं है। language is something well structured system। रियल लैंग्वेज, इवन साइन लैंग्वेज नीड्स स्ट्रक्चर। यही बात जो है ना वो साइन लैंग्वेज भी जो है ना उसको भी स्ट्रक्चर चाहिए। रिटन लैंग्वेज तो दूर की बात। इट्स अबाउट पुटिंग वर्ड्स और साइंस टुगेदर इन द राइट ऑर्डर टू शेयर फुल आइडियाज। और उनको जो है ना वो प्रॉपर नमूने से जो है ना स्ट्रक्चर्ड मैनर में रूल्स के बेसिस पर हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स को, जो कंप्लीट जो है ना वो मैसेज कन्वे कर पाते हैं।
It's about putting words together. Human seems to have a special part of the brain that helps us organize these words or signs, which is big reason why we can use language in such complex way. उसके बाद द जेनेटिक सोर्स, जेनेटिक वर्ड से जो है ना हमें पता चलता है कि इट्स अबाउट जीन. Some scientists believe that humans are born with a special ability to learn language. कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ह्यूमन जो है ना वो पैदा होते हैं एक स्पेशल एबिलिटी के साथ जो लैंग्वेज लर्न करने में जो है ना लैंग्वेज सीखने में उनको हेल्प करती है, उनके पास ऑलरेडी एबिलिटी मौजूद होती है. This idea is called innateness hypothesis. Definitely every source here we have discussed uh, is hypothesis, not 100% sure. It suggests that something in our genes, maybe a special mutation, gave humans this unique skill. It didn't happen slowly over time, but rather quickly in our evolution. तो ये जो है ना एक यूनिक स्किल है ह्यूमंस के पास जो लैंग्वेज प्रोड्यूस करने में उनको हेल्प करता है. Instead of just looking at fossils or how we make sounds, researchers began thinking more about how a brains work, like how a computer is pre-programmed. This led to the idea that there might be a special language gene that only humans have. ये जानना कि फॉसल्स को देखना, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उनको देखना, और रिसर्चर्स जो है ना वो ये इस चीज को देखने के बजाय कि साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उन्होंने रिसर्चर्स ने ये देखना शुरू किया कि इननेटनेस जिसको हम बोलते हैं ना कि देयर इज समथिंग स्पेशल प्रेजेंट इन ह्यूमंस दैट अलाउ देम दैट अलाउज देम टू प्रोड्यूस लैंग्वेज. तो वो इन द एंड इस रिजल्ट पर जो है ना वो पहुंचे जो जेनेटिक सोर्स को सपोर्ट करते हैं कि देयर इज लैंग्वेज जीन इन ह्यूमंस जो उन्हें हेल्प करता है लैंग्वेज प्रोड्यूस करने में, स्पीक करने में. ठीक है. तो FOXP2 जिसको हम जीन बोलते हैं दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज एबिलिटीज इन ह्यूमंस, जो हेल्प करता है जो है ना वो क्रूशियल रोल प्ले करता है लैंग्वेज ह्यूमंस में प्रोड्यूस करने के लिए करने में. It produces a protein that acts as a transcription factor, which means it helps control the activity of other genes involved in brain development and the coordination of movements needed for speech. So it's all about today's video, the origins of language. For more videos, please subscribe my YouTube channel, press the bell icon, and please like, share, and comment. We'll meet you in next video. Take care. Allah Hafiz.